Hello everyone, welcome to today's session. I'm so glad you are here to explore another wonderful story with me. Today, we will dive into Quality by John Galsworthy. It's a short but deeply touching story about dedication, craftsmanship, and the changes in modern industry. What is craftsmanship? It refers to the skill and artistry required to create something by hand. And in this story, we will meet Mr. Gessler, an old German shoemaker who put his heart and soul into making the best quality shoes. But his struggle is not just against the challenges of creating shoes. He's fighting against the rise of large commercial companies that are taking over his craft. So, I will be explaining some difficult words and the ideas throughout the video. So, don't worry, I will guide you step by step. So, let's begin. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मैं उन्हें बचपन से जानता था एक्सट्रीम यूथ मतलब बचपन से क्योंकि वो मेरे पिता के जूते बनाते थे वे अपने बड़े भाई के साथ एक शॉप में रहते थे और वो शॉप कहाँ थी एक छोटी गली जो कि जहाँ पे कम भीड़ भाड़ होती है स्मॉल बाय स्ट्रीट का मतलब होता है नैरो एंड लेस बिजी स्ट्रीट और वो शॉप कहाँ पे थी लंदन के एक फैशनेबल इलाके में थी द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स and in the window there were just a few pair of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit perfectly. Distinction मतलब कुछ अलग यूनिक स्पेशल किसी चीज का तो उनकी दुकान का एक खास आकर्षण या स्पेशलिटी क्या थी कि दुकान पे सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स का नाम था और जो विंडो थी जो शॉप की खिड़की थी उसमें कुछ पेयर ऑफ शूज मतलब कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे और वो शूज सिर्फ ऑर्डर पर ही बनाते थे अगर ऑर्डर नहीं है तो वो नहीं बनाते थे और जो भी वो शूज बनाते थे उनकी फिटिंग हमेशा परफेक्ट होती थी टू मेक बूट्स such boots as he made seemed to me then and still seems to me now mysterious and wonderful वो जिस प्रकार के जूते बनाते थे उस समय भी और अब भी मुझे बहुत रहस्यमय मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय एंड वंडरफुल बहुत अद्भुत लगता है मुझे I remember well one day when shyly I asked him while stretching out my foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" His answer, given with a sudden smile from out of the deadness of his beard, was, "It is an art." So whatever the conversation we are going to read in this story is in German accent. So it is an art means it is an art and likewise we will be reading the next conversations also. तो इसका क्या मतलब है मुझे अच्छे से याद है जब एक दिन मैं शाइली मीन्स शर्माते हुए उनसे अपने पैर फैलाते हुए पूछा क्या इसे बनाना बहुत मुश्किल है क्या मिस्टर गेस्लर जो शूज आप बनाते हो उसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्या तो उन्होंने अपनी लाल दाढ़ी के पीछे से हल्की सी मुस्कान के साथ क्या जवाब दिया ये एक आर्ट है ये एक कला है It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly long, having something beyond the temporary, some essence of the boot. A sense of the boot means they were made so well that they seemed to have some lasting quality stitched into them. And lasted terribly long means they lasted for a long time. So जो उन इतना पॉसिबल नहीं था कि उसके शॉप पे हम बार बार जाएं क्योंकि शूज लेने के लिए जाते थे और वो ऑर्डर पे ही बनाते थे और जो वो शूज बनाते थे वो बहुत लंबे समय तक चलते थे जैसे कि उनमें कोई जादुई गुण है और जब जूते खराब ही नहीं होते थे तो उनके पास जल्दी जाना उसका पॉसिबल ही नहीं था कि वो दोबारा से उनकी शॉप पर जल्दी से जाए One went into his shop not as one would enter other more shops but restfully as one enters a church. Sitting on a single wooden chair, I would wait. A guttural sound would come from upstairs, followed by a tip-tap of his slippers as he came down the narrow wooden stairs.
He would stand before me without a coat, a little bent, wearing a leather apron, with his sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. कह रहे कि जब मैं उनकी शॉप पे जाता था तो वो एक नॉर्मल शॉप मुझे नहीं लगती थी, बल्कि एक ऐसी चीज लगती जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं, जैसे चर्च में जैसे हम एंटर करें और वहाँ पे हमें शांति, कामनेस, पीस मिलता है, वैसा मुझे लगता था। और मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाता था और इंतजार करता था मिस्टर गेस्लर का। जब ऊपर से एक गहरी आवाज आती थी, गटरल साउंड मीन्स हार्श एंड ग्रफ साउंड, तो जब ऊपर से आवाज सुनाई देती थी, फिर उनकी स्लीपर्स की मतलब चप्पल की आवाज आती थी कि वे लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते थे, और वो बिना कोट के हल्के झुके हुए और चमड़े का एक एप्रन पहना होता था, और जो उनकी जो स्लीव्स थी वो उन्होंने मोड़ के उनके आगे सामने खड़े होते थे, और उनके चेहरे पे एक ऐसा भाव होता था जैसे वो जूतों के सपने से जागकर अब नीचे आ रहे हैं। And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? और मैं कहता, कैसे है मिस्टर गेस्लर, क्या आप मेरे लिए एक जोड़ी रशियन लेदर के जूते बना सकते हैं? Without a word, he would leave, either returning from where he came or into the other portion of the shop. और ये सुनते ही वो क्या बिना कुछ कहे वहां से चले जाते, या तो जहाँ पे आए थे वहां चले जाते, या फिर डिफरेंट एरिया, अदर पोर्शन मीन्स दुकान के दूसरे हिस्से में वो चले जाते। After some time, he would return holding in his hand a piece of gold brown leather. और कुछ समय बाद वो वापस आते और उनके हाथ में क्या होता है, एक टुकड़ा गोल्ड ब्राउन लेदर का। With his eyes fixed on it, he would say, "What a beautiful piece." और अपनी आईज जो है उनकी उसी लेदर पीस पे ही रहती जो गोल्ड ब्राउन था, और क्या कहते, कितना खूबसूरत, कितना शानदार टुकड़ा है ये। एंड आफ्टर आई एडमायर्ड इट, और जब मैं उसको एडमायर करता, उसकी प्रेज करता, ही वुड आस्क, व्हेन डू यू वांट देम? जब वो एडमायर करता तो वो पूछते कि तुम्हें कब चाहिए ये जूते? एंड आई वुड रिप्लाई, ओह, एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन। और वो क्या रिप्लाई करता कि जितनी जल्दी आप दे सकते हो आप उसको दे दो। ही वुड रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड मीन्स रिप्लाई करना, उसका आंसर देना। ही वुड रिस्पॉन्ड, टुमारो फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स। तो वो कहते हैं कि जितनी जल्दी आप दे सकते हो दे देना मुझे। तो मिस्टर गेस्लर क्या कहते हैं कि मैं 2 वीक्स, मतलब फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स के अंदर मैं आपको दे दूंगा। If his elder brother were still alive, he might say, I will ask my brother. और अगर उनके जब बड़े भाई जिंदा थे, अलाइव थे, तो तब वो क्या कहते हैं कि मैं अपने ब्रदर से, भाई से पूछकर बताऊंगा। Then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gessler. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up to the stairs to his dream of boots. और फिर वो जवाब मिलने के बाद क्या बोलते कि थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ जाता तो उसको फिर से दोबारा से साउंड आती, टिप टैप ऑफ द स्लीपर्स, मतलब उनके पैरों की, उनकी जो चप्पल की आवाज आती कि वो स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और दोबारा से अपनी ड्रीम ऑफ बूट में वो जा रहे हैं। One day I had to mention to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. तो एक बार मैंने उनसे क्या कहा, मिस्टर गेस्लर, पिछली बार के जूते कुछ आवाज कर रहे थे। क्रीक मतलब जो आवाज आती है जब शूज में से, उसको बोलते हैं क्रीक साउंड। He looked at me for a while without replying, as if expecting me to take back or explain my statement. Then he said, "It shouldn't have creaked. It shouldn't have creaked मतलब, but it did. I am afraid," I replied. उन्होंने बिना कुछ कहे उस समय उनको देखा, जैसे उन्हें ये उम्मीद ही ना हो कि मैं अपनी बात वापस ले लूं या समझा दूं। फिर उन्होंने कहा, यह आवाज नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये करते थे। मैंने जवाब दिया, तो you got them wet before they found themselves, he said. तो मतलब you got them wet before they properly settled. I don't think so, I said. तो उन्होंने क्या कहा, तुमने सही से नहीं पहना, तो सही तरीके से नहीं पहना, वो जब वो गीले हो गए होंगे इसकी वजह से आवाज कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। At this he lowered his eyes as if trying to remember those boots, and I felt sorry that I had brought it up. Send them back, he said. Means send them back.
I will look at them. Zoom boots, he continued slowly, are bad from birth. मतलब some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. Means that if I cannot fix them, I will not charge you. तो जब उन्होंने सुना कि वो कह रहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गीले हो गए थे और जिसकी वजह से उसमें से आवाज आ रही थी, तो ऐसा सुनने पे उन्होंने अपनी आंखें झुका ली, जैसे वो याद कर रहे हैं वो जूते क्या थे और क्यों ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो कहते हैं कि मुझे खेद है कि तुमने ये बात उठाई, तुम उन्हें वापस भेज दो। उन्होंने कहा मैं उन्हें देखूंगा। कुछ जूते, उन्होंने कहा, ऐसे ही होते हैं जो शुरू से ही खराब होते हैं। अगर मैं उन्हें सही नहीं कर सका तो मैं तुम्हारे उस बिल में से उस जूतों की वैल्यू माइनस करके मैं बाकी के चार्ज तुम्हें, जो तुमने अब नया ऑर्डर दिया है, उसके चार्ज लगाऊंगा। Only once I entered his shop wearing boots and I had bought in an emergency from a large company. He took my order without showing me any leather, but I could feel his eyes examining the boots on my feet. Finally he said, "Those are not my boots. Those are not my boots." तो वो कह रहे कि एक बार मैंने उनके सामने किसी बड़ी कंपनी के जूते जो पहन के वो चले गए, जो जब वो एंटर किया तो उन्होंने क्या किया, बिना किसी उनको कोई स्टैम्प पे कोई भी लेदर का पीस नहीं दिखाया और उसका ऑर्डर ले लिया। लेकिन वो महसूस कर सकता था कि वो ध्यान से वो शूज देख रहे हैं और उन्होंने लास्ट में क्या बोला, ये मेरे जूते नहीं है। His tone was not of anger, sorrow, or even contempt, but there was something so quiet about it that it froze my blood. तो कह रहे कि उनकी जो आवाज थी, ना तो उसमें गुस्सा था, ना कोई दुख था, ना ही कोई हेट या फिर कोई घृणा, कंटेम्प्ट मींस हेट, लेकिन जो उनके जो ऐसी बात थी कुछ जो उन्होंने बोला कि वो जैसे जम सा गया हो वहां पे। He pressed a finger on the spot where the left boot was not comfortable और मिस्टर गेस्लर ने अपनी फिंगर को वहां पे पॉइंट आउट किया, उस स्पॉट पे, उस जगह पे रखा जहां पे लेफ्ट बूट उसका कंफर्टेबल नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, मतलब इट हर्ट्स यू देयर। और उन्होंने क्या बोला, आपको यहाँ पे दर्द होता है इसकी वजह से। He said, those big worms have no self-respect. That means those big companies, they have no pride in their work. तो उन्होंने कहा बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई आत्मसम्मान नहीं होता। He then spoke long and bitterly, the only time I ever heard him talk about the difficulties of trade. तो उसने कहा कि ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने उन्हें उनका जो व्यापार ट्रेड किया था, ये जूतों का, उसकी जो कठिनाइयां, जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे थे, उसके बारे में वो बात करते हुए मिस्टर गेस्लर को उसने सुना। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who loaf for boots. तो कह रहे कि जितना भी बिजनेस था, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, उन्होंने जो सारा विज्ञापन से, मतलब एडवर्टीजमेंट से जितना भी काम है, उन्होंने सारा का सारा अपनी तरफ खींच लिया है। हार्ड वर्क से, अपने काम से उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो सब धीरे धीरे करके जितने भी बिजनेस था उनका, मिस्टर जो गेस्लर थे उनका बड़ी कंपनीज की तरफ जा रहा था बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। और वो उन लोगों को भी ले गए जो लोग उनके जूते, बनाए जूतों को पसंद करते थे। It comes to this, he continued. Presently I have no work, every year it gets less. Soon I have no work, every year it gets worse. तो मतलब उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मेरे पास जो है अब काम नहीं बचेगा, हर साल पहले से मेरा काम जो है वो कम हो जाता है। It was many months later that I visited his shop again. और कुछ महीनों के बाद वो दोबारा से उसकी शॉप पे, मिस्टर गेस्लर की शॉप पे वो दोबारा जाता है। This time it seemed to be his elder brother handling a piece of leather. How are you, Mr. Gessler? I asked. तो इस बार ऐसे लग रहा था जैसे उसका बड़ा भाई जो है वो टुकड़ा लेदर का दिखाते हुए बोल रहा है। So he came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो वो कह रहे कि I am pretty well, but my elder brother is dead. तो जब वो कुछ महीनों के बाद दोबारा से शॉप पे जाता है तो वो कहते हैं कि कैसे हो मिस्टर गेस्लर। तो वो पास आकर उसको देखने लगे। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन जो मेरे बड़े भाई है वो अब जिंदा नहीं है।
He is dead. He is not alive. He is no more. I was shocked and murmured, "Oh, I'm sorry." तो एकदम से उसको हैरानी हुई और उसने फुसफुसाया, murmured means धीरे आवाज में बोला, "ओ मुझे बहुत दुख है." Yes, he said he was a good man, he made good wood, but he is dead. तो उन्होंने कहा हाँ वो एक अच्छे इंसान थे, उन्होंने अच्छे जूते बनाए, लेकिन अब वे नहीं रहे. Over time, Mr. Gessler himself grew older and frailer. और समय के साथ साथ मिस्टर गेस्लर खुद भी कमजोर होते गए और बूढ़े भी हो रहे थे, इसलिए कमजोर हो रहे थे. When I next returned to London after more than a year, I found his shop taken over by another man. Mr. Gessler, I asked. और कुछ मतलब 1 साल से जब थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, वो दोबारा से लंदन गया और फिर दोबारा से उस शॉप पे जाता है और तो क्या देखता है कि जो उनकी जो शॉप थी वो किसी और ने ले ली थी. तो वो क्या बोलते हैं, मिस्टर गेस्लर, उसने पूछा. Dead, the man replied. He starved himself, poor old man. He just couldn't keep up. तो वो कहते हैं डेड मतलब वो मर गए हैं, उस आदमी ने जवाब दिया. तो वो कह रहे बेचारे, उन्होंने खुद को भूखा मार दिया, वो बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर सके. He made the best boots in London, but people didn't have the patience to wait. वो कहते वो लंदन में सबसे अच्छे जूते बनाते थे, बट लोगों के पास सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था, इंतजार करने के लिए वो रेडी नहीं थे. He never advertised, did everything himself and couldn't compete with the big firm. बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं की और सारा काम खुद करते थे और जिसकी वजह से वो बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ compete नहीं कर पाए. आई वॉज डीपली मूव्ड. कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा इस चीज ने अफेक्ट किया. मिस्टर गैसलर हैड devoted his entire life to his craft, but in the end, it cost him everything. Yes, I said quietly, he made good wood. तो कह रहे हैं कि मिस्टर गेस्लर ने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम को समर्पित कर दी, लेकिन वो सब कुछ खो दिया उन्होंने लास्ट में. और उसने बोला धीरे से, हाँ वो अच्छे जूते बनाते थे, तो उसके लिए जो शूज बनाने का काम था वो सिर्फ शूज बनाने का एक काम ही नहीं था, वो इतना ज्यादा फुल्ली डिवोटेड और डेडिकेटेड था मिस्टर गेस्लर कि दैट वाज एन आर्ट फॉर हिम. वो उनके लिए एक आर्ट पीस की तरह था. So, this brings us to the end of the beautiful and meaningful story Quality by John Galsworthy. And it teaches us that true dedication to one's work and love for craftsmanship might not always bring financial success, but it leaves behind a lasting legacy. I hope you enjoyed the story and learned something valuable today. If you did, please give this video a thumbs up, share it with your friends, and subscribe to the channel for more thought provoking stories and lessons. I will see you in the next video. Keep learning and take care. God bless.